Hello, good morning to all. Now today we discuss field effect transistor. In last class we discussed about difference between BJT and field effect transistor. BJT is a bipolar junction transistor and field effect transistor is a unipolar transistor. So we discuss what is the advantage of FET over BJT and what are the disadvantages of FET over BJT in last classes. So now we move further on. The field effect transistor is having three terminals: drain, source, and collector. The, the gate terminal is just similar to the base terminal of BJT, and source is just similar to emitter terminal of BJT, as we discussed in last class, and drain is very much similar to the collector. As we know in BJT, common emitter configuration provide best result. So in a FET, common source provide best result. As one of the very important characteristics of FET is it is a voltage control device. Means input voltage control output current and output voltage. So why it is known as voltage control device. Whereas BJT is a current control device. Input current, base current, controlling the output current and voltage. That why BJT is known as current control device. एग्जाम में पूछते हैं कि why FET is a voltage control device and why BJT is a current control device. Now, advantage of JET over BJT. So it is unipolar device. Because of unipolar, there is only one charge carrier, and this is a majority charge carrier. So its operation depend upon the flow of majority carrier. That's why it is a unipolar. Because only majority carrier is there is no minority carrier, so it is more temperature stable. No leakage current possible in a FET. And of course, all others are having advantages. It has a very high input impedance, is again a very good advantage. It is less affected by noise because there is no leakage current, no minority carrier. And one of the very most important advantage of FET over BJT, it is size. The size of BJT is very, very small as compared to FET. So it is very much preferred in an integrated IC technology. So these are all advantages. Now there is only one drawback. The drawback of FET over BJT, it has low gain bandwidth product. This field effect transistor has low gain bandwidth product as compared to BJT. So we can't prefer BJT over FET because all others are having advantage. Now next thing. So we divide FET into two parts. That is sorry, I have to clear first. We divide FET into two. We classify FET into two parts. That is a JFET, junction field effect transistor, and second is a MOSFET. MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor, and JFET is a junction field effect transistor. So we first start from JFET, then we move on MOSFET. So JFET, there are two types of JFET, P channel and N channel. Of course, we prefer N channel JFET because in N channel, the majority of charge carrier is electron and the mobility of electron is higher than mobility of holes. So we prefer N type JFET. Now, construction and working. So this is a construction of N channel JFET. So it is a 3-terminal device. Here is a N-type semiconductor, and both side of there is doping a P-side semiconductor into N side. So there is P-type semiconductor. Here is P-type semiconductor.
of course the concentration of this p type semiconductor is much higher than the concentration of n side. So sometime we write here p plus. So p plus simply indicate the concentration of this region is much higher than the concentration of other region. p की concentration n से ज्यादा है. Now so here this is ohmic contact. We know that it is a contact between conductor and semiconductor. तो ohmic contact से contact बना हुआ गेट. Here is gate, दोनों साइड गेट है और दोनों गेट आपस में कनेक्टेड है. मींस अगर जो पोटेंशियल हम यहाँ पे दे रहे हैं वही सेम पोटेंशियल हमें इस टर्मिनल पे मिलेगा. तो बोथ गेट आर इंटरकनेक्टेड एंड दैट वन इज अंडरस्टूड. अंडरस्टूड मींस ये है कि हमें बार बार इसको शो करने की जरूरत नहीं है. तो हियर इज एन चैनल. टॉप पे हम लिख रहे हैं ड्रेन एंड बॉटम एंड इट इज अ सोर्स. तो the construction simply indicate कि we can also interchange drain with source. अगर हम ड्रेन को सोर्स इंटरचेंज कर दें या सोर्स को ड्रेन से इंटरचेंज कर दें, there is no problem. तो सोर्स एंड ड्रेन can be interchangeable. As we know that कि drain is very much similar to collector and source is very much similar to emitter. But VGT, remember, we can't interchange collector with emitter because both are having a different size and different doping level. But this is not happen here. We can interchange drain with source. Now, one important thing is a symbol. This is symbol of n channel JFET. So this is n channel. So this is gate और जो arrow का direction है वो अंदर है, अंदर की तरफ है. तो what the direction of arrow indicate कि when if gate is forward wise, अगर हमारा gate forward wise है, then current will be moved inward. अगर gate it is n channel, गेट क्या हमारा P है. अगर गेट फॉरवर्ड वाइज होगा तो P से करंट अंदर की तरफ जाएगी. तो जब एरो इनसाइड है तो देन इट इज अ n चैनल JFET और जब एरो आउटसाइड होगा तो इट इज अ p चैनल JFET. तो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. कंस्ट्रक्शन सॉरी. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द वर्किंग. तो दिस इज अ p चैनल JFET. तो n की जगह पे p कर दिया और p की जगह पे n कर दिया. ऑल द थिंग्स और सेम और सिंबल में जो एरो इनसाइड थी अब वो आउटसाइड है. दैट इज ओनली डिफरेंस. नाउ वी मूव वर्किंग अप n channel JFET. तो वर्किंग वी डिवाइड वर्किंग इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज अनबायस्ड JFET. अनबायस्ड JFET मींस कि हमने बाहर से कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया. जैसा हमारा JFET है उसको हमने ऐसे ही रहने दिया. हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाया, कोई बैटरी नहीं लगाई. तो then we will see कि what happen. अगर हम बाहर से कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं, बाहर से कोई पोटेंशियल नहीं लगा रहे हैं JFET में, तो क्या कोई डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा, कोई जंक्शन फॉर्म होगा. नाउ लुक इट. हियर इज गेट, देयर इज नो पोटेंशियल. ड्रेन एंड सोर्स सब आपस में ओपन है. नाउ दिस इज अ n channel and this is a p. Here is n and here is p. So there is a junction between n and p. So because of this junction a depletion layer form. A depletion layer form. Why did this depletion layer form? Because we know that in unbiased diode, because of diffusion process, some hole will be moved from p side to n side and some electron will be moved from n side to p side. So there will be a depletion layer between p and n. So this is very much similar to a NP diode. So here is again a depletion layer into these sides. And remember here the width of depletion layer is uniform. Means ऐसा नहीं कि इधर depletion layer की width ज्यादा इधर कम है. तो total जो depletion layer की width है वो uniform है और ये बिल्कुल similar वैसा ही है जैसा हमारा unbiased diode था. और जहाँ पे depletion layer जो form हो रही थी because of diffusion process, electron will move from higher concentrations to lower concentration. And see, ठीक है. Now in case of unbiased JFET, there is a depletion layer. Of course, the width of depletion layer is very narrow. Now, what about current? So, there is current? No. There current will be a 0. करंट तभी फ्लो होगी जब इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इधर जाए. तो करंट इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा यहाँ पे? देयर इज नो पोटेंशियल हियर. यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को या रिपेल कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन जहां है वो अपनी जगह रहेंगे. तो इससे करंट क्या होगी? टोटल 0 होगी.
नाउ अब हम इसको बायस्ड करेंगे। बायस्ड मतलब हम बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाएंगे जेफिट में, ठीक है। तो नाउ वी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट बायस। अगर हम जेफ एन चैनल जेफिट की बात करें, फर्स्ट है ऑपरेशन ऑफ एन चैनल जेफिट व्हेन वीजीएस इज जीरो, मतलब हमारा जो गेट वोल्ट और सोर्स के बीच का वोल्टेज हमने जीरो कर दिया। सेकेंड केस में हमने क्या कर दिया, जेफिट को लगाया एक स्मॉल वीजीएस से, गेट एंड सोर्स पहले हम जीरो, जिसमें स्मॉल वीजीएस लगाया। और थर्ड क्या है, जेफिट को हमने लगाया एक लार्ज नेगेटिव वीजीएस से, ठीक है। तो इन तीन केस में ले रहे हैं, और तीनों केस में ऑल द थ्री केसेस हैविंग अ वैल्यू ऑफ VDS। VDS मतलब इट इज वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर VDS की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो कोई बात नहीं, ड्रेन और सोर्स आपस में इंटरचेंज हो गए, तो करंट अब उल्टा डायरेक्शन में फ्लो हो गए, ठीक है। तो करंट फ्लो कराने के लिए हमें ये चाहिए VDS। नाउ लुक हियर, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ऑपरेशन ऑफ n चैनल JFET विद VGS इज 0। VGS 0 मतलब ये हमारा गेट है और ये नीचे सोर्स है। तो गेट और सोर्स को हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट, तो हियर गेट एंड सोर्स आर शॉर्ट सर्किट, तो वी कैन से इट इज अ 0। नाउ वी आर अप्लाइंग दिस VDS, तो D is connected with positive and S is connected with negative, so here is VDS. Now when it is a 0, then it is a negative and it is positive, तो जो नेगेटिव हो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या, दिस इज एन चैनल, तो एन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो करंट फ्लो होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां से ऊपर से, ये सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहा है, तो करंट क्या होगी, ड्रेन से सोर्स की तरफ आएगी, ठीक है। करंट, बट यहाँ पे जब करंट रहेगी तो उसको हम ड्रेन करंट बोलेंगे। अब वही करंट जब नीचे आ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे सोर्स, और इस केस में ड्रेन करंट और सोर्स करंट इक्वल होगी। As we remember, in BJT, emitter और source collector current equal थी, but this is approximate equal, ठीक, बट यहाँ पे इक्वल करंट है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और ये जाएगा ड्रेन की तरफ, और करंट उसके उल्टे फ्लो, बिकॉज ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। नाउ अब हम बात करेंगे डिप्लीशन लेयर, क्या ईपी और एन के बीच में डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा। तो डिप्लीशन लेयर पहले भी फॉर्म था जब हमने कोई पोटेंशियल, यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं लगा, तभी भी हम यहाँ पोटेंशियल नहीं लगा रहे हैं, और यहाँ पे भी हमने पोटेंशियल नहीं लगाया था तो भी डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो रही थी। अब बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो जो रिवर्स बायस है पी और एन वो और बढ़ जाएगा और डिप्लीशन लेयर की ब्रेथ और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो रिमेंबर दैट कि द डिप्लीशन लेयर की ब्रेथ जो होगी वो ड्रेन साइड ज्यादा होगी और सोर्स साइड वो कम होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। अनबायस में यूनिफॉर्म थी, बट इन दिस केस ड्रेन साइड में डिप्लीशन लेयर की ब्रेथ ज्यादा होगी और सोर्स साइड में कम होगी। नाउ क्वेश्चन आता है कि व्हाई द ब्रेथ डिप्लीशन लेयर इज मोर देन ड्रेन साइड एंड लोअर देन सोर्स साइड। आप सिंपल समझिए कि हियर इज एन चैनल JFET, तो कोई भी सेमीकंडक्टर उसका अपना एक रेजिस्टेंस है, तो हमने उसको रेजिस्टेंस के फॉर्म दिखा दिया, चैनल का अपना एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल हियर इज अ 2 वोल्ट, VDS की बात करें अगर हम, तो VDS इज अ 2 वोल्ट, मतलब हमने यहाँ पे 2 वोल्ट लगा दिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ पे क्या लगाया, VGS 0 कर दिया, 0 मतलब ये हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ऐसे लगा दिया, ये VGS हो गया 0। अब चूंकि यहाँ पे फ्रॉम हियर टू फ्रॉम हियर वी आर अप्लाइंग 2 वोल्ट, अब करंट फ्लो हो रही है, तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस तो इतना है, दिस पोर्शन, जो टोटल रेजिस्टेंस अगर R है, टोटल R है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे जो इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस, क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, रेजिस्टेंस होगा R/5। अगर 5 पार्ट हम ले रहे हैं, तो देन the voltage at this point is R5 into I. Somehow, for example, it is 0.4 voltage. Same
अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा, चूंकि रेजिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक हम काउंट करेंगे तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा, तो आई इंटू आर, तो 0.8 वोल्ट, यहाँ पे 1.12 वोल्ट, मे बी यहाँ पे 1.6 वोल्ट, और यहाँ पे 2 वोल्ट। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं सोर्स ड्रेन, वी आर मूविंग फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, द पोटेंशियल विल बी राइज। सो एट दिस पॉइंट दिस इज अ पी एंड दिस इज ए एन, ये पूरा एन है, तो P और N रिवर्स वाइज होंगे बिकॉज वी आर कनेक्टिंग P with 0 and N with positive. So this P और N it is working as a PN junction and it is reverse wise, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ रहेगी। यहाँ पे 0.8 वोल्टेज हो गया, तो नाउ दिस पॉइंट द PN junction is reverse bias by 0.8 वोल्ट, तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की विड्थ और ज्यादा होगी। अब यहाँ पे क्या है, इट इज 1.2 वोल्ट, तो 1.2 वोल्ट इज मच हायर, तो P को हमने 0 से लगा दिया, N को 1.2 वोल्ट से कर दिया, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो वही चीज है कि जैसे जैसे हम ड्रेन सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएंगे, डिप्लेशन लेयर की विड्थ और बढ़ती जाएगी। अगेन जब हम ये पोटेंशियल और बढ़ाएंगे, जैसे हमने 2 वोल्ट लगा दिया, अभी हमने इसकी वैल्यू हमने लग दिया 3 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल, तो 3 वोल्ट है तो ये 0.454 की जगह पहुंचता है 0.8 हो जाए, 1.5 हो जाए, 2.5, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ और बढ़ जाएगी। ऐसे पहले कम थी और बढ़ गई, और बढ़ गई डिप्लेशन लेयर की विड्थ। अब फॉर एग्जाम्पल इसको हमने और बढ़ा दिया, करंट भी बढ़ेगी, ऑफकोर्स डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, ये पोटेंशियल ये हायर वोल्टेज हो गया, ये लोअर वोल्टेज हो गया, तो और करंट बढ़ जाएगी। और जैसे VDS की वैल्यू 4 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ और बढ़ेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों डिप्लेशन लेयर आपस में एक दूसरे को टच करने लगेंगे, एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज पिंच ऑफ। Pinch off means it is a point at which both depletion layer will be touched to each other. Now, what will be happen to current? Because हमने गेट को तभी हमने जीरो रखा हुआ है, करंट फ्लो रही इस VDS के कारण। ठीक है, अब अगर ये दोनों डिप्लेशन लेकर बिल्कुल टच कर जाएंगे तो यहां से कोई रास्ता नहीं मिलेगा, देयर इज नो पाथ फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स टू मूव इलेक्ट्रॉन। तो अगर पाथ नहीं मिलेगा तो करंट नहीं फ्लो होगी, देयर इज नो करंट तो ये डिप्लेशन लेयर फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली इंडिकेट कि एक फिर भी थोड़ा सा छोटा सा चैनल बच जा रहेगा, और वो उस चैनल के थ्रू एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो दोनों डिप्लेशन लेयर ऑलमोस्ट टच करेंगे, बट एक थोड़ा सा चैनल बचा रहेगा और उससे एक कांस्टेंट करंट फ्लो। अब यही सी चीज को हम फिगर में दिखाएंगे। हियर हमने एक प्लॉट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ फिगर देखिए, दिस सो लुक हियर, this is a VDS is positive, VGS is a 0. Now ये प्लस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, रिपेल कर रहा है, अब डिप्लेशन लेयर टच करने लगा ऑलमोस्ट, बट एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगी। तो ये हमने दिखाई दिया कि जब हम VDS बढ़ा रहे हैं, 1 वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो हियर इज ID, दिस करंट ID, तो ID करंट बढ़ रही है, और जैसे ही VDS की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो गई, फॉर एग्जाम्पल इट इज 4 वोल्ट, जैसे हमने अभी बताया था कि जैसे ही VDS की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज या 4 वोल्ट के बराबर हो गई, तो उसके बाद दोनों डिप्लेशन लेयर ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच करने लगे और एक कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगे, और ये हमने कहा कि हम ट्रांजिस्टर इज गॉट सैचुरेटेड। तो जब VGS की वैल्यू 0 है तो व्हेन वी आर इंक्रीजिंग VDS पहले करंट बढ़ेगी और कुछ देर बाद वो करंट कांस्टेंट हो जाएगी, और ये जो कांस्टेंट करंट है उसी को हम बोल रहे हैं IDSS। ठीक है, तो हाउ वी डिफाइन IDSS? IDSS इज अ ड्रेन टू सोर्स करंट। एग्जाम में आता है एक दो नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज IDSS? IDSS इज अ ड्रेन, D for drain, S for source and S for short circuit. It is a drain to source current when gate is a short circuit. मतलब गेट जब हमारा 0 है, here VGS is a 0, जब VGS is a 0, then it is a current flowing from drain to source. So it is maximum current. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेकेंड केस लेंगे, VGS लगाएंगे, मतलब हमने एक निगेटिव वोल्टेज लगा, ध्यान रखिए VGS इज ऑलवेज निगेटिव,
VGS को हम कभी भी पॉजिटिव नहीं करेंगे, VGS को हमेशा हम नेगेटिव ही रखेंगे। तो व्हेन VGS इज अ नेगेटिव, फॉर एग्जांपल इट इज -1, ठीक है, हियर इज VGS इज अ नेगेटिव। तो व्हेन इट इज -1, तो अब ये P को हमने लगा दिया नेगेटिव, P इज अगेन कनेक्टेड विद नेगेटिव, then it also increase the depletion layer, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ और बढ़ जाएगी। तो जो पहले पिंच ऑफ 4 वोल्टेज में मिला था, अब चूंकि अगर फॉर एग्जांपल इट इज -1 वोल्ट, तो पिंच ऑफ 3 वोल्ट पे ही मिल जाएगा, बिकॉज 4 वोल्टेज पे दोनों आपस में दूसरे टच करने लगे। तो 1 वोल्टेज से रिवर्स वाइज करेगा VGS और 3 वोल्टेज से करेगा आपका VTS। तो वही हम फिगर में दिखाएंगे। फॉर VGS इज 1 वोल्ट, the pinch up is, we are getting pinch up here at 4 volt for example, now we are getting pinch up is more earlier, ठीक है। तो of course, तो when we increasing VDS करंट बढ़ रही है, जैसे ही VDS की वैल्यू 3 वोल्ट हो गई, करंट उसके बाद वो कांस्टेंट होने लगी -1 पे। अगेन हम VGS की वैल्यू -2 कर दिया, तो नाउ गेट इज अगेन रिवर्स वाइजिंग द डायोड या PN जंक्शन, तो हमें जो डिप्लीशन लेयर जो होगी और पहले टच करने लगेगी -2, करंट हमारी और कम हो गई। VGS की वैल्यू -3 कर दिया, तो करंट और कम हो गई, ठीक है। और जैसे ही VGS की वैल्यू -4 हो गई, दैट इज पिंच ऑफ वोल्टेज, तो मतलब कि क्या है कि जैसे ही VGS की वैल्यू -4 हो गया, here is -4, तो ये दोनों डिप्लीशन लेयर आपस में टच करने लगेंगे। अब टच करने लगेंगे तो करंट क्या हो जाएगी, 0। ध्यान रखिए, यहाँ जब ये -4 था तो टच करने लगे, बट एक चैनल बचा हुआ था, क्योंकि अगर चैनल नहीं रहेगा तो कोई यहाँ पे डिप्लेशन लेयर फॉर्म नहीं होने वाली, ठीक है। तो बिकॉज अब इसके कारण डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो रही थी, जो करंट फ्लो हो रहा था। अब क्या है कि ये अकेला इतना ज्यादा हाई हो गया है कि इसने अकेले ही चैनल की ब्रेथ को क्या कर दिया, 0, तो करंट इज अ 0, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल वही हम फिगर से दिखा रहे हैं कि विन VGS इज VP, और ये करंट हमारी क्या हो गई, 0। तो दिस कर्व इज नोन एज ड्रेन कर्व, इट इज अ कर्व बिटवीन VDS एंड IDS, इट इज ड्रेन कर्व। और ये रीजन जो पिंचअप वाला रीजन है, इससे पहले इस रीजन को कहते हैं ओमिक रीजन, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहे हैं, करंट बढ़ रही है, तो ओम्स लॉ को फॉलो करा है, इसलिए इस रीजन को हम कहते हैं जो डॉटेड लाइन से पहले जो लाइन है, दिस रीजन इज नोन एज ओमिक रीजन। एंड आफ्टर this region is known as saturation region or active region। here saturation region और active region ट्रांजिस्टर में सेम है, ठीक है। of course it is a locus of pinch off values। तो before this VDS बढ़ा रहे हैं, ID बढ़ रही है, तो हमारा क्या हो गया, मतलब एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस रीजन में अगर फिट काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं फिट इज वर्किंग एज अ वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर, VVR, voltage control register, when fit is working in this region. This curve is known as drain characteristics. It is very important, ठीक है। Now, अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट कर्व होता है ट्रांस कंडक्टेंस कर्व। दिस इज अ ट्रांस कंडक्टेंस, ये वाला जो चीज पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस कर्व। दोनों को हम अगर अगर ये ड्रेन कर्व है और ये ट्रांस कंडक्टेंस कर्व है, दोनों को हम साइड साइड में रखते हैं। तो ट्रांस कंडक्टेंस कर्व क्या है, इट इज कर्व बिटवीन VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज और ID है, इन दोनों के बीच में वोल्टेज है। ये ध्यान रखिए कि हमने गेट को हमेशा रिवर्स वाइज रखा, गेट को हमने पॉजिटिव नहीं किया, क्योंकि हमें गेट करंट को 0 करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेट, कि गेट करंट इज अ रिवर्स वाइज से तो गेट करंट फ्लो होगी ही नहीं। तो दैट व्हाई इट आल्सो इंडिकेट इट इज हैविंग वेरी हाई इनपुट इंपेडेंस। नाउ सिंपल मतलब है कि जब इस VGS की वैल्यू 0 है, ये 0 वाला एक्सिस है, तो जब VGS की वैल्यू 0 है, जब VGS की वैल्यू 0 है, तो उस समय जो ID करंट है क्या है, वो IDSS है। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया IDSS, व्हेन VGS इज 0 ID इज इक्वल टू दिस। दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, जब VGS की वैल्यू पिंच ऑफ के बराबर है, जब VGS की वैल्यू पिंच ऑफ दैट इज -4 हमने लिया था के बराबर है, तो उस समय करंट क्या हो जाती है, 0। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया
कि जब VGS की वैल्यू पिंच ऑफ बराबर है तो करंट क्या होगा, इमेजिन 0। ठीक है, बाकी चीजें फिर हम वही VGS की वैल्यू -1 है तो करंट कितनी थी, हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमारे यहाँ मिल गया। VGS की वैल्यू -2 है तो -2 पे करंट ये हो रही थी, तो हमने इसको कर लिया, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करे -2 इधर और ये 2 वाली लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करे, ये दूसरा पॉइंट हमारा ये मिल गया। तीसरा VGS की वैल्यू ये हो गया तो इधर कर लिया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, और इन सबको बना दिया तो एक लोकस जो बन गया, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस कर्व। ठीक है, तो इट इज कर्व बिटवीन ID एंड VGS। So this is all about working of JFET. ठीक है, any question you can raise your question in a class or mail me or message me. Okay, thank you very much, and we are ending here today class, and okay, thank you.